माई लवली रॉक स्टार्स, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का. दिस इज द थर्ड सेशन ऑन LCM and HCF, and we'll be doing some questions on HCF in this session. So first question, the product of two numbers is 6760 and their highest common factor is 13. So how many such pairs can be formed? Product of two numbers is given and highest common factor is also given, that is 13, and we need to find out how many such pairs can be formed. Number of solutions. So since हमें given नहीं है कि वो numbers क्या है, HCF given है, so we can assume, we know if HCF is H and we have to assume two numbers, let us say X and Y, so they can be HA and HB, है कि नहीं? Isn't it so? So we can assume that these two numbers are 13A because HCF is 13, H is equal to 13. So numbers are 13A and 13B. So their product will be 6760. 13A into 13B will be 13 into 13, 169 into A into B, that is 6760. और 6760 is 4 times 160 का 4 times 640 है, 4 times है exactly. So 169 से क्रॉस करोगे 40 टाइम्स आएगा. अदरवाइज 13 को सेपरेट रहने दो, 13 into 13 को पहले 13 से क्रॉस कर लो, उसके बाद में बचा हुआ नंबर से क्रॉस कर लो, ठीक है. सो A into B will come out to be equal to 40. This is equal to 40. And both A and B have to be co-prime. HCF of A and B will be equal to 1. Both A and B have to be co-prime. तो कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल है? Either A will be equal to 1, B will be equal to 40, या 2 और 20 तो नहीं हो सकते because then they are not co-prime. 4 और 10 भी नहीं हो सकते, not co-prime because both are even. So next possibility is 5 and 8, either 1 and 40 or 5 and 8. And since A और B तो हमने assume किया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने पेयर्स बनेंगे? क्वेश्चन तो अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस के बारे में, अनऑर्डर्ड. So there will be only two pairs, two such pairs, 1 into 40 and 5 into 8. So only two such pairs are possible. Option B will be the answer. और pairs क्या होंगे? These are not the pairs. ये तो हमने A और B की वैल्यूज निकाला है. So numbers हमारे हो जाएंगे X and Y. X can be 13 into 1 and Y can be 13 into 40. This will be first solution. और second solution, ठीक है, X और Y की बजाय ऐसे two numbers लिख देते हैं because then it looks like an organized solution, ordered solution, ठीक है. सो फर्स्ट पेयर होगा 13 and 13 into 40 यानी 520 का, और सेकेंड पेयर होगा 13 into 5 that is 65 और 13 into 8 104 का. सो these are the two pairs. These are the two pairs. Second way to look at the same thing is कि 40 है, 40 is 2 cube into 5 to the power 1, और क्योंकि A और B को कोप्राइम रखना है तो सारी की सारी एक नंबर की पावर्स को हमें एक साथ ही रखना पड़ेगा. तो 2 की सारी पावर एक साथ रहेंगी, 5 की सारी पावर एक साथ रहेंगी. अब अगर हम दो बकेट्स देखें, 2 बकेट्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 3 के लिए 2 ऑप्शन है, किसी भी एक बकेट में चला जाए. 5 की पावर 1 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 2 into 2. एंड सिंस द सॉल्यूशंस आर अनऑर्डर्ड तो वी विल डिवाइड बाय 2, ठीक है. इन जनरल रिकॉल करो, अभी 1-2 सेशन पहले ही किया है. 2 to the power n-1 सॉल्यूशंस होंगे व्हेन अनऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशंस आर देयर, और 2 to the power n सॉल्यूशंस होंगे व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशंस आर देयर, where n is number of prime bases जिनकी पावर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, in the product of A and B. okay, ठीक है. next question, if A and B are two positive integers such that product of A and B is 207900 and their HCF is 15, find the number of solutions for A and B. now this question is ordered solution वाला case because A and B variables are mentioned, variables mentioned है. HCF 15 है, नंबर्स हो जाएंगे 15A, A and B तो ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, तो हम कह सकते हैं 15x and 15y, बिकॉज A और B की वैल्यूज ही निकालनी है. सो A इज इक्वल 15x और B इज इक्वल 15y हो जाएगा, और HCF x and y विल बी इक्वल टू 1, वो प्राइम होंगे x और y. 15x into 15y, दिस इज इक्वल टू 207900. ओके, ठीक है. 15 into 15 इज 225 और 225 यानी 25 into 9 into xy is 207900. अब 25 से डिवाइड करना है, या तो पहले 9 से डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगा?
9 2s are 18, 27, 231 फॉलोड बाई 00, और 25 से जब भी डिवाइड करोगे तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 25 ऑलवेज रिमेंबर 25 क्या है, दिस इज 100 बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी 25 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो 1 बाई 25 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 बाई 100, 4 बाई 100, ठीक है। सो 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो द आंसर विल बी 231 इंटू 4, दैट इज 892, सॉरी 9 क्या हो गया है मुझे, 892 कैसे आ जाएगा, 924 होगा, ठीक है। 23100 है, 25 से हमने डिवाइड किया, ठीक है, या तो अलग से डिवाइड करो 25 से तो भी समझ में आ रहा है, दिस विल बी 25 विल बी 231 इंटू 4, बिकॉज 100 क्रॉस कर लोगे, और आंसर आ जाएगा हमारा 924। सो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 924। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 924 का, तो 924 इज 4 तो क्लियरली दिख रहा है, 4 को पहले ही निकाल लिया, 4 इंटू 231, इनफैक्ट मल्टीप्लाई करने की यहां जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सो 4 इंटू 231, और 231 नंबर को हम बार बार देख चुके हैं पिछले 2-3 सेशन में। 231 क्या होता है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 3, सो 4 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, सो बेसिकली एक्स वाई हमारा आ गया इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1। सो बेसिकली देयर आर 4 प्राइम बेसिस जिनकी पावर्स में हम डील कर रहे हैं एक्स एंड वाई में, और क्योंकि एक्स और वाई को प्राइम है, सो इनको सेपरेट रखना पड़ेगा, है कि नहीं, यानी कि एक प्राइम बेस की सारी पावर्स को एक साथ ही रखेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, ऑर्डर्ड का केस है, सो दैट इज व्हाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 4, व्हिच इज इक्वल टू 16 सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इज इट क्लियर, 16 सॉल्यूशंस विल बी देयर, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर x एंड y सच दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 35 while sum of x and y is 1085। अब इस बार सम वाले केसेस है, सम गिवन है x और y का, और ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस है, हमेशा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड जरूर ये हमेशा ध्यान दे लिया करो, अदरवाइज एग्जाम में क्या, एग्जाम प्रेशर में गलती होने का स्कोप जरूर रहता है। तो बार बार जब प्रैक्टिस में हैबिट में आ जाएगा ना, हर बार ये चेक करना ऑर्डर्ड है अनऑर्डर्ड है, तो ऐसी गलती नहीं होगी, अदरवाइज एग्जाम में हो सकता है आंसर आए 8 तुमने मार्क कर दिया 4, या आंसर आया 16 तुमने मार्क कर दिया 8, तो ऐसी गलती नहीं होगी अगर ऑर्डर अनऑर्डर सबसे पहले चेक कर लोगे, ठीक है। सो HCF ऑफ x एंड y इज 35, सो x एंड y का HCF 35, यानी x एंड y कैन बी, x कैन बी 35a, 35 into 8, y can be 35 into b, and a and b are co-prime. So 35 into a plus b, because sum of x and y is 1085, so 35a plus 35b यानी 35 into a plus b is equal to 1085, ठीक है। 35a plus 35b was 1085, 35 हमने कॉमन ले लिया, अब सिंप्लीफाई कर लो, 35 से जाएगा 3 टाइम्स 31 आ जाएगा, सो a plus b comes out to be equal to 31। So how many co-prime solutions can be there for a and b? If we take a as equal to 1, b will be 30, a as equal to 2, b will be 29, a is 3, b is 28, a is 4, b is 27, a is 5, b is 26, and so on। अब तक एक भी ऐसा पेयर मिला क्या जो आपस में को-प्राइम नहीं हो? एक भी पेयर नहीं मिला, और आगे भी देखोगे तो कोई भी पेयर मिलेगा नहीं। 6 and 25, 7 and 24, 8 and 23 and so on। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 31, एक बार सोचो जरूर क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज 31 इज अ प्राइम नंबर, 31 is a prime number, so all numbers that are less than 30 are not a factor of 31। सारे के सारे नंबर्स जो कि 30 से 31 से छोटे हैं, none of them is a factor of 31, isn't it so? So as such Euler's torsion function क्या होगा 31 का? 531 will be 31 minus 1, that is 30, which implies that all 30 numbers less than 30 are co-prime to 31, less than 31 होगा यहाँ पे, less than 31 are co-prime to 31, isn't it so? और अगर सारे नंबर्स को प्राइम है तो किसी भी तरह से ब्रेक करो सब चलेगा, सारे
तरीके चलेंगे, बिकॉज हर तरीके में हमें कोप्राइम नंबर्स ही मिलने वाले हैं. ए और बी विल ऑलवेज बी कोप्राइम. ठीक है, ए एंड बी विल ऑलवेज बी कोप्राइम. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो लास्ट सॉल्यूशन हमें मिलेगा 15 एंड 16 वाला. ठीक है, इसके बाद में फिर चीजें पलट जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी. इफेक्टिवली ए कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 30, बिकॉज 31 नहीं होगा, 31 पे तो 0 आ जाएगा ना बी. तो ए कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 30 और अकॉर्डिंगली बी विल बी 31 माइनस ए. So total number of solutions will be 30 solutions, because ordered solution है, that is why 30 solutions will be there. अगर अनऑर्डर्ड होता तो 15 होते, बिकॉज 15 16 के बाद में फिर से चीजें पलट जाने वाली हैं. तो 15 पेयर्स बनते हैं हमारे, 15 पेयर्स बनते हैं फॉर अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस. बट क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पूछा है, आंसर विल बी 30 सॉल्यूशंस विल बी देयर. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. और कोई भी प्राइम नंबर होगा कभी भी में अगर उसके लिए सॉल्यूशन निकालना है तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ. फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में करना हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 71, ठीक है, एंड a एंड b आर को प्राइम, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 70 सॉल्यूशंस आएंगे, बिकॉज a कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 70, एनी वैल्यू a कैन टेक. अगर, और ये ऑर्डर्ड वाला केस है, अगर सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स this is equal to 71, in that case number of solutions होंगे 35. Okay, next question. The HCF of two numbers is 27 and their sum is 540. How many such pairs are possible? So HCF is 27, so numbers will be 27a and 27b. So sum will be 27 into a plus b is equal to 540. So a plus b will come out to be equal to 20. तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? a plus b is 20. So a can be 1, b can be 19, और a can be 2, b can be 18, पर यहां पे कोप्राइम नहीं हो रहे. a can be 3, b can be 17, 4 and 16 again not कोप्राइम, 5 and 15 not कोप्राइम, 6 and 14 not कोप्राइम, 7 and 13 will be the next value. Then 8 और 12 में भी कोप्राइम नहीं होंगे. लास्ट विल बी 9 and 11. ठीक है, 9 and 11, बिकॉज 10 and 10 विल ऑल्सो नॉट बी कोप्राइम. तो कितने पेयर्स मिले हमें? 1, 2, 3 and 4. और क्योंकि अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस थे तो 4 सॉल्यूशंस विल बी देयर. और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? वी कुड हैव डायरेक्टली कैलकुलेटेड टोशेंट और 5 फंक्शन विच इज यूलर्स टोशेंट फंक्शन ऑफ 20, और उसकी वैल्यू क्या आएगा? 20 इज 2 स्क्वायर into 5 to the power 1. So torsion will be 20 into 1 by 2 into 4 by 5. अगर यूलर्स टोर्शन फंक्शन वाला सेशन नहीं देखा है तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना, पिछला ही सेशन है, एक बार उसको देख लेना ध्यान से, बातें समझ में आ जाएंगी. 20 into 1 by 2 into 4 by 5, so that will be equal to 8. So there will be only 8 numbers which are less than 20 and co-prime to 20. तो अगर 8 numbers in total हैं तो पेयर्स कितने हो जाएंगे? पेयर्स होंगे 8 by 2, यानी कि 4 पेयर्स. ठीक है, 4 पेयर्स, एंड दीज आर दोज 4 पेयर्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a plus b is equal to 6930 and HCF of a comma b is equal to 21, find the number of positive integral solutions for a and b. So HCF is 21 and a plus b is 6930. So numbers can be 21x and 21y, and this time solutions are to be ordered. Ordered solutions लेने हैं. So 21 into x plus y is equal to 6930. 21 से जाएगा 330 टाइम्स. So x plus y is equal to 330. So number of co-prime solutions कितने होंगे? अब ये तो बड़ा नंबर है, इस पे डायरेक्टली इस तरह से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. तो यहां पे तुम्हें 5 फंक्शन निकालना ही पड़ेगा, टोशन निकालना ही पड़ेगा, यूलर्स टोशन. तो 5 of 330, और 330 is 3 into 11, 2 into 3 into 5 into 11, that is 330. ये वैल्यू 330. ओके, सो 2 into 3 into 5 into 11, so torsion will be 330 into 1 minus 1 by 2 यानी 1 by 2, 1 minus 1 by 3 यानी 2 by 3,
1 minus 1 by 5 4 by 5 and 1 minus 1 by 11 10 by 11. So 2 into 5 से 10 गया और this will be 330 into 8 by 33. So total numbers will be 80. 80 numbers less than 330 are co-prime to 330. Pairs बनेंगे 40 but क्योंकि ordered solution चाहिए तो 40 into 2 answer will be 80 only. Answer will be 80 only. So there will be total 80 solutions, 80 positive integral solutions. Okay, clear? 80 solutions हो जाएंगे. Next question. Difference and HCF of two positive integers are given as 24 and 8 respectively. How many such pair of integers are possible if both numbers are two digit numbers? डिफरेंस भी गिवन है हमें और HCF भी गिवन है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का. अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, सम गिवन था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है हमें. ठीक है, और HCF गिवन है. HCF इज 8, डिफरेंस इज 24. नंबर्स कैन बी 8A and 8B and numbers will be unordered only, unordered solutions because variables are not given. Difference is given, difference is 24. So 8A minus 8B is equal to 24. अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, अभी तक जो केसेस के हमने किए वहां पे सम ले रहे थे हम. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एडिंग 24 एंड 8, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा आएगा 32, सम आएगा 32. इफ यू आर एडिंग 8 एंड 24 यानी ऑर्डर तुम चेंज कर रहे हो बिकॉज इफ द वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, तो सॉल्यूशन पहले वाले केस में आएगा एक्स इज 24 वाई इज 8, सेकंड केस में आएगा एक्स इज 8 वाई इज 24, तब भी सम आएगा 32. तो देयर विल बी टू सॉल्यूशंस. बट अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो फिर ऐसा थोड़ी होगा, डिफरेंस में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, डिफरेंस में ऑर्डर चेंज नहीं होगा. 24 माइनस 8 इज 16 बट 8 माइनस 24 इज नॉट 16, दिस इज नॉट 16, दिस इज माइनस 16. सो दैट इज वाई डिफरेंस में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के केस में सॉल्यूशन हमारा सेम ही रहेगा. ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ डिफरेंस अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑर्डर जिसमें कि तुम नंबर्स को लिख सकते हो. अगर डिफरेंस 24 आ रहा है तुम्हारा तो डेफिनेटली लार्जर माइनस स्मॉलर इज 24, isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. अगर हमें डायरेक्टली गिवन है कि x माइनस वाई, इफ इट इज गिवन दैट x माइनस वाई इज इक्वल 24, इन दैट केस हमें पक्के से पता है कि x विल बी ग्रेटर देन y. अगर ये मेंशन है कि डिफरेंस इज 24 तब बात थोड़ी सी अलग हो जाती है बिकॉज इफ हमें वेरिएबल्स गिवन है और ये मेंशन है कि डिफरेंस इज 24 तो हमें नहीं पता x बड़ा है या y से या y बड़ा है x से, तो वहां भी फिर हमें अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड का जो मामला अभी तक देखा है वैसा ही होगा कि इन दैट केस अगर ये गिवन नहीं है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल 24 इज गिवन देन दिस इज क्लियर दैट x इज ग्रेटर देन y. तो उस केस में तो पक्के से पता है कि अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड विल बी इक्वल. अदरवाइज नहीं होगा कि इफ इट इज मेंशन्ड दैट डिफरेंस ऑफ x एंड y इज 24, तब तो फिर दोनों केसेस पॉसिबल हो जाएंगे. यहां पे भी डिफरेंस अगर ऐसा मेंशन्ड है तो, बिकॉज यहां एक प्रॉपर ऑर्डर गिवन नहीं है, तो दिस माइट बी पॉसिबल दैट एक्स इज जैसे 24 अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में मान लिया हमारा एक नंबर 32 है, एक 8 है, या ऑपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंस तो दोनों ही केसेस में हमारा 24 ही आ रहा है. ठीक है, सो दिस केस विल बी स्लाइटली डिफरेंट. अगर डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 24, दिस इज मेंशन्ड एंड नॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल 24, उस केस में फिर हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डबल हो जाएंगे अगेन इस केस में भी. ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस इन दिस केस विल बी 2 टाइम्स ऑफ अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस. और रीजन समझ पा रहे होगे, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड, बिकॉज ऑर्डर इज नॉट मेंशन्ड. ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझ लेना. ओके, अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं. अपने क्वेश्चन, हमारा तो क्वेश्चन तो अनऑर्डर्ड है तो उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है. तो 8a माइनस 8b इज इक्वल 24, दिस इज द क्वेश्चन. एडिशनली question is saying how many such pair of integers are possible if both numbers are two digit numbers. Both numbers are two digit numbers. Okay, और अगर two digit numbers हैं और 8 के मल्टीपल होंगे बिकॉज HCF is 8,
One number is 8a, second number is 8b. So what can be the minimum value of a and b? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए या बी का? भाई अगर सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होगा, 8 का मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट, तो मिनिमम वैल्यू कैन बी 16, which is 8 into 2. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है? और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? दैट कैन बी 96, which is 8 into 12. So 8a and 8b should be between 16 and 96. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? They should be between 16 and 96. और अगर 8 को कॉमन लेके रिमूव कर दें तो a minus b will be equal to 3. So a and b have to be between 2 and 12. And since a is larger than b, तो डेफिनेटली b की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है. b कैनॉट बी इक्वल टू 1. b इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल. इफ b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर हमारा 8b विल बी सिंगल डिजिट नंबर. So smallest value of b is 2 and a will be 5. Then b can be 3, a will be 6, b can be 4, a will be 7 and so on. But साथ में एक और चीज ध्यान रखना है. वो क्या ध्यान रखना है? That a and b have to be co-prime still. They also have to be co-prime. और अगर co-prime होना है तो फिर 6-3 वाला केस is not possible. Next will be 5 and 8, 6 and 9. Even this case is not possible, because both will be multiple of 3. Next case हो जाएगा 7 and 10, 8 and 11, और 9 and 12. But even 9 and 12 वाला case is also not possible because the numbers will not be co-prime. तो कितने पेयर्स बने हमारे? 5 and 2, 7 and 4, 8 and 5, 10 and 7, and 11 and 8. So total pairs are this much. Isn't it so? So only 5 solutions are there. 5 solutions in the given case. Okay. If instead question mentioned, अभी तो हमने assume किया है, but अगर question mention करता that x and y are two such positive integers and x minus y is equal to 24, even in that case number of solutions will be 5 solutions. But if the question mentioned difference of x and y is 24, then number of solutions would have been double 10 solutions. Okay, एक और छोटी सी बात कि लेट अस से क्वेश्चन में हमें कंडीशन नहीं मेंशन होता कि दे आर 2 डिजिट नंबर्स, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस वुड हैव बीन पॉसिबल? इफ द क्वेश्चन हैड नो कंडीशन मेंशनड दैट दे ऑल आर 2 डिजिट नंबर्स, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते? कितने सॉल्यूशंस होते उस केस में? इनफाइनाइटली मेनी. इफ नो कंडीशन ऑन एट एंड 8b टू बी 2 डिजिट नंबर्स, क्योंकि तब तो डिफरेंस मेंशन था. हम बढ़ाते जाते, बी की वैल्यू बढ़ाते जाते, ए की वैल्यू बढ़ती जाती, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते. बिकॉज डिफरेंस कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट में लिमिट फिक्स्ड है, दैट इज व्हाई देयर आर लिमिटेड सॉल्यूशंस, फाइनाइट सॉल्यूशंस. बट जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो वहां पे कोई भी लिमिट फिक्स नहीं है, अनलेस यहां पे इस क्वेश्चन में लिमिट फिक्स किया 2 डिजिट नंबर्स का, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sum of two numbers a and b is 1050. So what is the maximum value of HCF of a and b? Pause the video and think about it. What will be the maximum value if two numbers are given and their sum is 1050? So what can be the maximum value of highest common factor? Maximum value of highest common factor of a and b. Let us say a is equal to h into x, b is equal to h into y, where h is the highest common factor and x and y are co-prime. So sum is 1050, and we can write hx plus hy is equal to 1050. h तो आ जाएगा कॉमन, h into x plus y is equal to 1050. Now x plus y, x and y have to be co-prime.
दे हैव टू बी कोप्राइम। बट क्या क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन्ड है दैट टू नंबर्स शुड बी डिस्टिंक्ट? ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं है। टू नंबर्स कैन बी इक्वल, दे कैन बी इक्वल, कैन बी इक्वल, because if you take them equal, that is the case when x plus y will be minimum, because हमारा पर्पस क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। और अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें गिवन है विच इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, और एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और x एंड y कैन नॉट बी लेस देन 1, लेस देन 1 तो नहीं हो सकते, दे कैन बी 1 और 2 और 3 और 4, इंटीजर ही होना है उनको। सो मिनिमम वैल्यू फॉर x एंड y कैन बी 1 and 1. So x plus y का minimum value will be 1 plus 1, which is 2. Which is 2. In that case, h will be equal to 1050 by 2. So h will be equal to 1050 by 2, which is 525. So basically both numbers will be 525, और 525 और 525 दोनों ही numbers होंगे, तब भी हमारा HCF कितना आएगा? 525 ही आएगा. So yes, the maximum HCF will be when both numbers are equal. When both numbers are equal. When both A and B are equal, and maximum value of HCF is 525. But just in case question में additional mentioned होता कि sum of two distinct numbers, if question mentioned sum of two distinct numbers A and B is 1050. In that case, what would have been the maximum value of HCF? आप सोच के बताओ। सेम इक्वेशन बनेगा हमारा, h into x plus y is equal to 1050, यही इक्वेशन बनेगा। और पर्पस भी सेम है, we have to maximize the highest common factor, so we have to minimize x plus y. But this time they cannot be equal, दोनों को हम इक्वल टू 1 नहीं कर सकते, ठीक है। कोप्राइम तो वैसे भी होना है, बट दोनों को इक्वल टू 1 नहीं कर सकते। तो इस बार केस बन सकता है दैट वी कैन टेक x इक्वल टू 1, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू तो 1 ही ले सकते हैं, y की सबसे छोटी वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो x प्लस वाई कैन बी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो सकता है। बट जैसे ही हमने x और y को 1 प्लस 2 लिया है, उसके बाद में चेक भी करना है वेदर 1050 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले 1050 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 1050 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो पहले केस में जब कोई कंडीशन नहीं था, हमने x प्लस वाई को इक्वल टू 2 कर दिया था, बिकॉज 2 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब यहां पे 2 नहीं कर सकते, तो हम सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 3 को टारगेट करेंगे, एंड x को 1 ले लेंगे, y को 2 ले लेंगे, 1 प्लस 2 इज 3। तो डेफिनेटली यहां पे हमारा h विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, ठीक है, h विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या है, क्लियर है? यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, एक सेकंड सही तो ले रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 2 तो आ गया अपना, ठीक है, 35 105, हाँ बिल्कुल गलत किया, 5 स्क्वायर आ रहा है ना, 5 स्क्वायर आ रहा है, भारी ब्लंडर हो गया। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा, दैट विल बी 350। So highest common factor in this case will be 350. In the second condition, if numbers are distinct, in that case, ठीक है। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए तो आंसर 525 है, बट इफ नंबर्स वर डिस्टिंक्ट देन आंसर वुड हैव बीन 350। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम अपने एंड पे करना, पॉज द वीडियो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, अपने एंड पे सॉल्व करो। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y इज 1001 1001। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF of x and y? If their HCF is maximum, then find number of solutions for x and y. If HCF is maximum, find the number of solutions for x and y. ओके, तो लास्ट में आ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उसके लिए तो हमें पता है सिंस x and y वेरिएबल्स आर मेंशन्ड, सो दिस विल बी ऑर्डर्ड केस, ऑर्डर्ड केस होगा। बट पहले क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ले कि व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF, उसके बाद में सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x and y इज 1001। ओके, सो लेट अस से x इज इक्वल टू
h into a, y is equal to h into b. So h आ जाएगा कॉमन, sum will be h into a plus b, that is 1001. And 1001 is 7 into 11 into 13. And we have to maximize value of h. This has to be maximized. So a plus b will be minimum. This has to be minimum. और गिवन नंबर्स में मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है भाई? कहने को तो कह सकते हो दिस इज ऑल्सो 1 into 7 into 11 into 13, बट 1 तो आना पॉसिबल नहीं है ना. a plus b cannot be 1, it has to be minimum 2 तो होना पड़ेगा. So that is why the minimum value is 7. 7 is the minimum possible value for a plus b. Because 7 is the smallest factor. So a plus b will be equal to 7 and h will be equal to 11 into 13, which is 143. And a and b have to be co-prime. और अगर a और b को co-prime होना है तो number of solutions कितने हो जाएंगे? This could be 1 and 6, or this could be 2 and 5, or this could be 3 and 4. 1 and 6, 2 and 5 and 3 and 4. Okay. तो number of solutions आ जाएंगे हमारे, क्योंकि ऑर्डर्ड केस है तो 3 पेयर्स बने हैं हमारे, इंटू 2, 6 सॉल्यूशंस इन टोटल. बिकॉज a प्लस बी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 6 प्लस 1. 6 प्लस 1 भी हो सकता है, बिकॉज देन x एंड y विल बी डिफरेंट. ठीक है, सो 6 सॉल्यूशंस इन टोटल, 6 विल बी द आंसर. और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ HCF मैक्सिमम इज 143. This is equal to 143. This will be the complete solution. Is that clear? तो किसी भी केस में हमें क्या करना है? If it is given, we have to maximize HCF, then we have to minimize the remaining factors a plus b. Remaining factor a plus b को हमें minimize करना है, और minimize करेंगे तो भी हमें जो product given है, product is 1001, तो we have to factorize 1001 into its prime factors and then identify what can be the minimum value possible for a plus b. What can be the minimum value possible for a plus b? Okay, ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, let us say h into a plus b is given as 2 square into 5 into 7. Okay, so we have to again maximize h. So think about it, what will be the value of highest common factor? HCF का value क्या होगा in this case? And the condition is that HA and HB, which is x and y effectively. So if x is HA, y is HB, so x and y are distinct integers. They are distinct integers. That is the condition. So what can be the maximum value of HCF? अगर ये distinct है तो maximum value क्या होगा? अगर डिस्टिंक्ट वाला कंडीशन नहीं होता, इफ दे कुड बी इक्वल, तब केस क्या होता है? a प्लस बी वुड हैव बीन इक्वल टू 2. दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू b इक्वल टू 1. ये आ जाता, और HCF हमारा आ जाता 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. बट ये तो तब होता जब वो इक्वल हो सकते थे. ये तो केस नहीं है हमारा. हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. तब फिर क्या कंडीशन बनेगा? इफ दे आर नॉट इक्वल, then a plus b has to be the second smallest value. क्या हो सकता है a plus b? 2 तो नहीं हो सकता. ठीक है, so you can think कि a plus b may be equal to 5, but ध्यान देना है 2 square is less than 5. 2 square is less than 5, तो a plus b can also be equal to 4. और क्योंकि हमें a plus b को मिनिमाइज करना है, हमारा पर्पस क्या है? अगर h को मैक्सिमाइज करना है तो a plus b को मिनिमाइज करना है, इसलिए ही ये क्वेश्चन लिया. बिकॉज इन दिस केस हमें भूलना नहीं है. ठीक है, ध्यान देना है, थोड़ा अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है कि a प्लस बी का वैल्यू विल बी 4 एंड नॉट 5. ओके, एंड नॉट 5. सो वील टेक a प्लस बी इक्वल टू 4. क्लियर? और इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4, देन a विल बी 1, b विल बी 3. और HCF क्या आ जाएगा? HCF विल बी 5 इंटू 7, 35 आ जाएगा. क्लियर? ठीक है, तो हमारा सम ये बेसिकली आ क्या रहा था? सम आ रहा था. इनिशियली हमने क्या लिया था सम यहाँ पे क्वेश्चन में? x प्लस वाई वॉज इक्वल टू 4 इंटू 5, 20 इंटू 7, 140.
So numbers will be 35 and 105. y is equal to 105. और अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशन होगा तो फिर वहां पे ऑपोजिट भी ट्रू होगा कि x इक्वल टू 105 एंड y इक्वल टू 35 डिपेंडिंग अपॉन. बट कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि हमें क्या चीज ध्यान देना था, जिसके लिए कि ये क्वेश्चन लिया कि अल्टीमेटली स्टार्ट में हमें फोकस करना है कि हम 5 नहीं मार्क कर देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 नहीं ले लेंगे, a प्लस बी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 4 और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. बट इतना अटेंटिव रहना है कि 2 का स्क्वायर इज लेस देन 5. ओके, ठीक है. सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें तुमने अगर गलतियां की होंगी तो उनको सीखा होगा, उनसे जरूर सीखा होगा. और ऐसे ही मॉक्स में भी तुम करना है. मॉक्स अगर अब तक प्रैक्टिस करना तुमने स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हो कि तुम ये सोचते हो और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मॉक को प्रैक्टिस करोगे. बिल्कुल भी मत करो अब ऐसा. अब इतना टाइम नहीं बचा है कि डिले करते रहो. ठीक है, हाफ प्रैक्टिस के साथ में ही स्टार्ट करो, बट स्टार्ट जरूर करो. अपनी गलतियों से ही सीखोगे. गलतियां करना अवॉइड करते रहोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे. ठीक है, बेशरम होकर अपनी गलतियां करो और अपनी गलतियों से सीखो. बेशरम होकर गलतियां करने का मतलब है अपनी गलतियां खुद के आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि मॉक करोगे, मॉक दोगे तो गलतियां करोगे, वहां गलतियां करोगे तो उनसे सीखोगे, तो मेन एग्जाम में गलती नहीं करोगे. अदरवाइज मेन एग्जाम में तो गलती होगी ना फिर, अगर सीखा नहीं होगा तो लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट. और लर्निंग करने के लिए गलती करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और गलतियां करने का मतलब ये हो कि तुम्हें तो अपना बेस्ट करना है, बट फिर भी गलतियां होंगी. और वो गलतियां होंगी तभी तो उनका पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां पे तुमसे गलती होती है, कहां पे तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, कहां पे और कौन सी प्रोसेस में तुमसे गलतियां होती है. छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है तुम्हारे लर्निंग के लिए. चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.